if you remember, we were discussing merge sort recurrence relation. We have seen the recurrence in merge sort is 2t of n by 2 plus n minus 1 for n greater than or equals to 2 and a power of 2. Then for solving recurrence, we first find out some initial terms and we tried to guess a formula, and we found it is difficult to guess a formula. Hence, we are trying to solve it using plug and chug method. And in the last lecture, we have completed step 1. Step 1 is plug and chug until pattern appears. In this step 1, we replace the function or the recurrence by its recurrence of same time. So, for example, t of n by 2 is replaced by 2t n by 4 plus n by 2 minus 1. And then we solved it. Again, we plug it. Then again, we chug it till we get a pattern. And we got a pattern here. And that pattern is Tn equals to 2 raised to k, Tn upon 2 raised to k plus Kn minus 2 raised to k plus 1. Now we will go for step 2. In step 2, we verify the pattern. The pattern which emerged in step 1 will be verified here. The pattern which we discovered, if not correct, then we can discover the mistake in this step. Whatever pattern we got, if it is not correct, if it is wrong pattern, then there will be a mistake and that will be discovered in this step. So therefore, step 2 is necessary step in plug and chug method. What we do in this step 1, step 2, we plug and chug once again. We write the formula which we got as an output of the first step, which is given here, that is Tn equals to 2 raised to k T of n upon 2 raised to k plus Kn minus 2 raised to k plus 1. अब एक बार इसे फिर से हमें प्लग करना है, तो ये हमारा 2 raised to k वैसे के वैसे रहेगा, और ये जो टर्म है t of n upon 2 raised to k, उसको एक्सपांड करना है प्लस Kn minus 2 raised to k plus 1, ये टर्म ऐसे के ऐसे आ जाएगी. अब यहाँ पर t of n upon 2 raised to k, इस टर्म को कैसे एक्सपांड करें? हमें पता है कि यहाँ 2 आता है, क्या आ जाएगा ये? इसको रिप्लेस करते हैं t of n upon 2 raised to k. पीछे जाके देखते हैं. देखो यहाँ पर ये जो था Tn by 4, तो ये Tn by 4 मतलब n upon 2 raised to 2 था. तो जब हम n by 4 को एक्सपांड कर रहे थे तो ये n by 8 हुआ था. तो n by 8 मतलब n upon 2 raised to 3 हुआ था. फिर 16 हुआ, n by 8 2 raised to 4 हुआ. मतलब अगर ये 2 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 4 है. तो अगला क्या होगा? 2 raised to 5 होगा, जो n upon 32 हो जाएगा. तो अगर ये k है तो नेक्स्ट क्या होगा? n upon 2 raised to k plus 1.
k plus 1. ओके, तो बोलिए यहाँ पर क्या डालू मैं? t ऑफ n अपॉन 2 raised to k plus k plus 1 plus 1 k प्लस क्या आएगा ये? n/8 प्लस क्या आता था ये? n/4 माइनस 1. n है ना ये n, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? n अपॉन 2 raised to k करेक्ट, प्लस या minus 1 minus 1. Okay, so now chug. In chugging, these all terms are multiplied by this 2 raised to k. So when we will multiply this 2 raised to k and this term, that will become 2 raised to, बोलो क्या हो जाएगी ये 2 raised to k है और ये 2 है, 2 raised to 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा k plus 1 करेक्ट, 2 raised to k plus 1 t of n upon 2 raised to k plus 1. ये फंक्शन है. यहाँ पर क्या बचेगा? n plus n प्लस n n बचेगा और यहाँ पर minus 2 raised to k माइनस 2 raised to k प्लस kn माइनस 2 raised to k प्लस 1. ओके, यहाँ पर अभी फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए चांस है. ये n और ये kn सेम टर्म्स है, ये 2 raised to k और ये 2 raised to k भी सेम है, तो इसे हम कंबाइन कर लेंगे. 2 raised to k plus 1 t of n of 2 raised to k plus 1 प्लस ये n और ये kn कितना हो जाएगा फिर? ये k plus 1 n हो जाएंगे, राइट है? n प्लस k n yes ma'am. k plus 1 n हो जाएंगे और ये माइनस 2 raised to k क्या हो जाएगा? माइनस 2 raised to k और माइनस 2 raised to k, ये भी 2 बार आ गए, तो ये हो जाएगा आपका 2 raised to k plus 1. ये पावर्स वाला रूल है, ये 2 बार आया है, ये 2 raised to k और 2 raised to k, तो 2 raised to k plus 2 raised to k हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 raised to k plus 2 raised to k plus 1 हो जाता है और फिर हमारा ये प्लस 1 बाकी है. तो अगर ये फॉर्मूला आप देखते हो तो ये जो है और ये है हमारा 2 raised to k और ये है हमारा 2 raised to k plus 1. ये है t of n 2 raised to k n 2 raised to k plus 1 kn k plus 1 n 2 raised to k 2 raised to k plus 1 plus 1 plus 1. सेम है फॉर्मूला. The formula is unchanged. The formula is unchanged except that k is replaced by k plus 1. Okay. So ये इंडक्शन काइंड ऑफ प्रूफ हो गया जिसमें हम अज्यूम करते हैं k और k plus 1 के लिए फॉर्मूला निकालते हैं. इसका मतलब जो पैटर्न हमने निकाला था ये वेरीफाई हो गया, ये करेक्ट है. ओके, everyone of you got this? Yes ma'am.
ओके, अब नेक्स्ट स्टेप जो होती है स्टेप 3, इस स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, write Tn using early terms with known value. Write Tn using early terms with known values. मतलब हमने जो फॉर्मूला निकाला है, पैटर्न जो है हमारा Tn इक्वल्स टू 2 रेज़ टू k Tn अपॉन 2 रेज़ टू k प्लस Kn माइनस 2 रेज़ टू k प्लस 1, ये जो फॉर्मूला है इसे हमें लिखना है फिर से यूजिंग फॉर्म में, ये लिखनी है। अब हमें जो अर्ली नोन टर्म है वो कौन सी है, T1। T1 पता है ना हमें, कितना है, 0 है। ओके, तो T1 हमें पता है, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि T1 आ जाए हमारे पास। n की ऐसी कोई तो भी वैल्यू हमें चूज करनी पड़ेगी, या k की वैल्यू मैं बोलती हूँ, k की ऐसी कुछ वैल्यू चूज करनी पड़ेगी कि ये जो है ना हमारा Tn अपॉन 2 रेज़ टू k ये 1 हो जाए। और ये अगर 1 हो गया तो हमारे पास T1 मतलब 0 रिप्लेस कर देंगे और ये फंक्शन निकल गया। तो उसके बाद हमारे पास 2 k n ऐसी वैल्यूज आ जाएंगे और फॉर्मूला मिल जाएगा। ये एक्चुअली फंक्शन है, ये Tn अपॉन 2 रेज़ टू k ये फंक्शन है। और हमें फाइनली करना क्या है, ऐसा कुछ n के फॉर्म में आंसर लाना है। जैसे पिछले टॉवर्स ऑफ हैनॉय में हमने 2 रेज़ टू n माइनस 1 निकाला था, तो t को मुझे यहाँ से हटाना है, t के ये फंक्शन को, ये फंक्शन है एक्चुअली, रिकरेंस सीक्वेंस है, इसको मुझे यहाँ से हटाना है। तो इसको हटाने के लिए मुझे एक यहाँ पर T1 लाना पड़ेगा। T1 लाना पड़ेगा मतलब n अपॉन 2 रेज़ टू k की वैल्यू 1 लानी पड़ेगी। तो मुझे k की ऐसी वैल्यू चूज करनी पड़ेगी सो दैट ये एक्सप्रेशन 1 हो जाए। ये एक्सप्रेशन अगर 1 हो जाता है तो 0 से मैं इसको रिप्लेस करके फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ साइड में लिखती हूँ, मुझे क्या चाहिए कि t ऑफ n अपॉन 2 रेज़ टू k T1 हो जाना चाहिए, मतलब n अपॉन 2 रेज़ टू k की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो मैं k की कौन सी वैल्यू लूं सो दैट ये जो डिवीजन है ये 1 हो जाए। ओके, k की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं यहाँ पर ले सकती हूँ कि n अपॉन n होना चाहिए ना, ये जब ये n अपॉन n होगा 2 raised to 0 means k equal to 0. क्या क्या लो k की वैल्यू, करना क्या है मैम? हाँ ये देखो, हमें ये जो है ना n अपॉन 2 रेज़ टू k इसकी वैल्यू 1 लानी है। मतलब ये जो 2 रेज़ टू k है ये अगर n हो गया तो ये n अपॉन n आ जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। तो k की मैं ऐसी क्या वैल्यू चूज करूं, ये k
k की मैं ऐसी क्या वैल्यू चूज करूं कि इसका आंसर n आना चाहिए। पता है आपको? अच्छा ठीक है। आपको एक ये फॉर्मूला पता है क्या? लेट मी टेल यू वन फॉर्मूला। लॉग निकालने का फॉर्मूला। सपोज मुझे ये जो है और ये y है, x इक्वल्स टू log of x to the base b इक्वल्स टू y। x के लिए मैंने अगर log of x इक्वल टू द बेस b इक्वल्स टू y, ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल्स टू b रेज टू y होता है। दिस इज वन मैथमेटिकल फॉर्मूला। यस है ना? तो अगर मैंने y की वैल्यू 1 ली या y की वैल्यू 1 ली, b की वैल्यू 2 ली और x की वैल्यू 2 ली, तो बेस मतलब 2 रेस टू 2 ये आ जाता है 4। ओके। तो इसमें y है हमारा ये और x है हमारा ये और बेस है हमारा ये। तो इसे कैसे लिखा है? x इज इक्वल्स टू log of x to the base b equals to y. We can write it using the formula x is equals to b raised to y. ओके तो अब ये जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें मुझे x की जगह पर चाहिए n, b के जगह पर है 2 और y की जगह पर है k। ओके तो मुझे n चाहिए, 2 रेज टू k रिप्लेस करने के लिए मुझे n चाहिए। तो मैं यहाँ k की जगह पर क्या लूं? क्या मैं log n ले लूं इस फॉर्मूला से? अगर मैंने इसको log x बोला है टू द बेस 2, तो मैं इसको log n टू द बेस 2 ले लूं और जब मैं बेस 2 लिखती हूं तो मुझे 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये log n आपको पता है क्या? ये अगर मैंने k की वैल्यू log n ली, यहाँ पर k की वैल्यू अगर मैंने log n ली, टू रेज टू log n क्या हो जाता है? n हो जाता है। तो ये हमारा 1 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? स्टेप 3, write Tn using early terms with known values. If we let
k equals to log n, then t of n upon 2 raised to k will become t of n upon 2 raised to log n will become t of n upon n will become t1 which is equals to 0. तो k की वैल्यू अगर मैं log n लेती हूं तो ये t1 equals to 0. तो ये इसका मतलब है write tn using early terms. Write tn using early terms with known values. तो tn जो हमारा हमने लिखा था यहाँ पर tn equals to 2 raised to k t of n upon 2 raised to k plus kn minus 2 raised to k plus 1. तो यहाँ पर मुझे k की वैल्यू log n लेनी है. क्यों लेनी है आपको समझ में आया ये कि नहीं आया? 2 raised to log n n हो जाता है. 2 raised to log n n हो जाता है, इसलिए हमने k की वैल्यू log n सिलेक्ट की है. ओके? Got it or not? Do you got it? ओके, तो आप जहां जहां पर k है उसे log n से रिप्लेस कर देते हैं. तो क्या आ जाएगा ये 2 raised to log n t of n upon 2 raised to log n प्लस ये है kn मतलब n log n माइनस 2 raised to log n प्लस 1. जहां जहां पर k था वहां पर हमने log n लिखा. अब इसको सॉल्व कर देते हैं. ये हो गया 2 raised to log n मतलब n हो गया. ये t of n upon 2 raised to log n तुम्हारा t1 हो गया. n log n ऐसे के ऐसे रह गया. ये माइनस 2 raised to log n फिर से आपका माइनस n हो गया और ये प्लस 1 हो गया. अब t1 की वैल्यू 0 है मतलब ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी. तो क्या बचा? n log n minus n plus 1. And this is the explicit formula, or you can say that it is closed form expression for the maximum number of comparisons used in merge sorting a list of n numbers. This is closed form expression of the maximum number of comparisons used in merge sorting a list of n numbers. ये ध्यान में रखो n log n minus n plus 1. हमें फॉर्मूला क्या मिला है? n log n tn equals to n log n minus n plus 1. अब आपको ये पता है कि जब हम किसी एल्गोरिथम की ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर नोटेशन में अपने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की है, इसमें से ये क्वांटिटी ऐड की है. तो ऑर्डर लिखते वक्त हम इतना एक्सप्लिसिट, इतना स्पेसिफिक नहीं लिखते. इस पूरे इसमें जो बड़ा है, जो भी एंटिटी बड़ी है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं. Isn't it? Yes. तो इसमें कौन सी एंटिटी बड़ी है? कौन सी बड़ी इसमें?
हाँ, n log n, यस करेक्ट, n log n। n log इसलिए n, n log n, यही ना, n log n। तो अब आपको याद आ गया, अपने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा है मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ऑर्डर ऑफ n into log n। यही है ना, n log n, ऑर्डर ऑफ n इंटू log n। yes ma'am, तो वहां पर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ तो भी करके ये नोटेशन लाते हैं, और यहाँ पर हमने ये रिकरेंस सॉल्व करके ये कॉम्प्लेक्सिटी लाई है। तो इसीलिए मर्ज सॉर्ट का एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है n log n, and specifically it is n log n minus n plus 1. So number of comparisons required to sort the merges, the list of n numbers using merge sort algorithm is n log n. Now let us check if what we have written or the formula which we have found is correct or not. हमने ये फॉर्मूला निकाला है और ऑर्डर हमारी ये ऐसे आ गई है, लेकिन फॉर्मूला तो यही है, क्लोज्ड फॉर्मूला। अब हमारे पास Tn है जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, तो यहाँ पर हम एक ऐसा टेबल बनाएंगे, Tn और n की वैल्यू हमने ली थी 1, 2, 4, 8 एंड 16, जो अर्ली टर्म्स निकाले थे। तब हमारा था Tn का वैल्यू क्या क्या था, 0, 1, 5, 17 एंड 49, ऐसा ही था ना Tn। ये n, इसके लिए ये Tn। तो क्या ये वैल्यूज हमारे फॉर्मूले से भी मिलती है हमें, ये हम चेक करेंगे। तो फॉर्मूला है n log n minus n plus 1। ओके, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 into log 1 minus 1 plus 1 equals to, minus 1 plus 1 कैंसल हो गया। ये log 1 कितना आता है, log 1 की वैल्यू कितनी है, 0, यस Zero. करेक्ट, log 1 is 0, so 1 into 0 आ गया आपका 0। ओके, अब ये सेकंड के लिए देखते हैं, n की वैल्यू है 2, log 2 minus 2 plus 1। अब ये जो है 2 into log 2 की वैल्यू कितनी है, log 2 0.3001, 301 0.01, I think it is 1, sorry it is 2, log 2 की वैल्यू 2 है या 1 है, ऐसा कुछ है, log 2 की वैल्यू 1 है। ये हमारा जो फॉर्मूला है ना, जो मैंने आपको बताया, x इक्वल्स टू बी रेस टू वाई, इससे भी आप लिख सकते हो कि अगर मैंने ऐसे लिखा 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 3, 2 रेस टू 4, 2 रेस टू 5, 2 रेस टू 6। ओके, तो ये हो गया हमारा 4, 8, 16, 32, 64। ओके, तो यहाँ पर ये आता है बेस और ये आता है y, ये आ जाएगा बेस और ये आ जाएगा y, और इनकी वैल्यू जो होती है वो हो जाती है हमारी x। ओके, तो 2 रेस टू 1 अगर लिया हमने तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा y। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू b रेस टू y, ये फॉर्मूला है। और तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log to the base b of x, और ये होता है y।
तो यहाँ पर 2⁻1 ये y है, मतलब ये है तुम्हारा y, और log बेस है 2 और x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर फिर 2, x की वैल्यू 2 है ना यहाँ पर बेस, x is equals to b raised to y, तो 2 equals to 2 raised to 1, ऐसे आ गया ना। ये जब x है, ये x है, ये बेस है और ये y है, इसीलिए log 2 to the base 2 is equals to 1। तो इस हिसाब से अगर मैंने log 3 to the base b ऐसे लिखा, सॉरी 4, log 4 to the base 2 क्या आ जाएगा? ये है आपका x, ये है आपका b, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी y, यहाँ पर क्या आएगा नहीं समझ में आ रहा है क्या ये? ओके, लेट मी टेल यू अगेन। नेक्स्ट स्लाइड पर लिख लेते हैं इसको। पहले लॉग की जो वैल्यूज है वो निकालना है हमें। तो जो फॉर्मूला है ये है x इक्वल्स टू log x इक्वल्स टू y b। तो बेस लिखना है इसलिए इसे log x। तो x की वैल्यू log x की वैल्यू टू द बेस b इक्वल्स टू y, ये होता है, ये इक्विवेलेंट है x इज इक्वल्स टू b रेस टू y के लिए। तो इसके लिए हमें 3 वैल्यूज लगती है y, b और x। तो अगर हमारा बेस है 2, y है 1, तो x आ जाएगा 2, ये फॉर्मूला से। अगर हमारा बेस है 2, y की वैल्यू है 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर हमारा y है 3, b है 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर y है 4, बेस है 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। y है 5, ये 2, ये आ जाएगी 32। ये है 6, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगी 64 एंड सो ऑन। ये क्या है? x इज इक्वल्स टू b रेस टू y। 2 रेस टू 1 2, 2 रेस टू 2 4, 2 रेस टू 3 8, 2 रेस टू 4 16, 2 रेस टू 5 32, 2 रेस टू 6 64। ओके, ये फॉर्मूला। अब इसमें डालते हैं ये वैल्यूज। अगर मैंने ये लिया log ऑफ x मतलब log ऑफ 2, log ऑफ x मतलब 2। अब बेस सबका 2 है, तो मैं यहाँ पर 2 नहीं लिखूंगी। log ऑफ 2 कितना आएगा? 1, y की वैल्यू है ना 1 ही आएगी। अब मैंने लिया log ऑफ 4, ये वाला, तो ये कितना आएगा? 2। अगर मैंने लिया log ऑफ 8 मतलब ये, तो कितना आएगा वो? 3। अगर मैंने लिया log ऑफ 16 मतलब ये आएगा 4। log ऑफ 32 ये आ जाएगा 5। log ऑफ 64 ये आ जाएगा 6।
ओके हम नॉर्मली लॉगरिथम के टेबल्स में ये ढूंढते हैं, लेकिन फॉर्मूला ये है x इज इक्वल टू बी रेस टू वाई, जहां पर b बेस है, y पावर है और x वैल्यू। तो जब हमें log ऑफ x निकालना है टू द बेस b, तो इसकी वैल्यू आती है y। और ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। गॉट इट नाउ? यस मैम। ओके यस तो मैम। फिर अब यहाँ पर log 2 की वैल्यू है आपकी, क्या है log 2 की वैल्यू? 1 है। 1 ओके ये 1 है, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 मतलब कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 ये आ गया 1। 1 अभी n की वैल्यू 4 ले लेते हैं, 4 इंटू लॉग ऑफ 4 माइनस 4 प्लस 1। लॉग ऑफ 4 कितना है? 2 2 2। सो 2 इंटू 4 8 8 8 8 8 माइनस 4 8 माइनस 4 4 4 4 4 प्लस 1 प्लस 5 5 5 ये है 5, ये 1 ये 0। ये जो हमने रिकरेंस में डाल के निकाली है ना ये वैल्यूज, पिछले पहले स्लाइड पे रिकरेंस में डाल के निकाली थी, अब फॉर्मूला में डालकर निकाल रहे हैं। अभी ये ले लेते हैं 8 8 इंटू लॉग ऑफ 8 माइनस 8 प्लस 1। लॉग ऑफ 8 कितना है? 3 3 3 3 इंटू 8 24 24 माइनस 8 16 16 प्लस 1 16 17 ये भी करेक्ट है। अभी 16 ले लेते हैं, लॉग ऑफ 16 कितना है? 4 4 4 इंटू 16 64 64 माइनस 16 64 माइनस 16 48 48 प्लस 1 8 49 ओके अब मुझे नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, यहाँ तक तो हमने निकाली थी, मुझे अब नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ आपका हो जाएगा n की वैल्यू हो जाएगी 32, तो ये हो जाएगा 32 इंटू लॉग 32 माइनस 32 प्लस 1। अब आप कैलकुलेटर यूज करो इसके लिए, log 32 कितना है? 5 है। 5 सो 32 इंटू 5 माइनस 32 प्लस 1 कितना आता है बोलो? थर्टी टू इंटू 5 आपका आ जाता है 160 माइनस 32 129 प्लस 1 129 9 129। तो निशांत आपने जो फॉर्मूला निकाला था उसमें अगर नेक्स्ट एलिमेंट 129 आता है तो वो फॉर्मूला करेक्ट ही है। चलो जाकर देखते हैं वहां पर। नहीं है क्या यहाँ पर? इरेज कर दिया था शायद। हाँ यहाँ पर था जो फॉर्मूला आपने यहाँ निकाला था। हाँ ये वाला है, ये देखो ये n माइनस 1 इंटू 2 रेस टू n माइनस 1 ये फॉर्मूला आपने निकाला था। इसमें अगर आपने वैल्यूज डाल के देखी और अगर वो 127 आता है, या फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो log n log n में। इसकी वैल्यू अगर n log n होती है तो ये फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है। तो इसमें कुछ टर्म है जो आप log n में कन्वर्ट कर सकते हो, तो करके देखो मल्टीप्लाई करके n इंटू 2 रेस टू n
then minus 2 raised to n, something like that. Okay, so hope you understand plug and chug method. Now we will solve towers of Hanoi recurrence using plug and chug method. टॉवर्स ऑफ हैनोई का जो रिकरेंस था वो हमने गेस एंड वेरीफाई से सॉल्व किया था. गेस एंड वेरीफाई से हमें नहीं मिला था फॉर्मूला मर्ज सॉर्ट के लिए, इसलिए हमने प्लग एंड चेक किया था. अब हम क्या करेंगे, टॉवर्स ऑफ हैनोई का एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ऑलरेडी निकल चुका है. इट इज 2n-1 है. गेस एंड वेरीफाई से उसको प्रूव करके देखा है, लेकिन हम ये प्लग एंड चग मेथड यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो आई कैन राइट हियर सॉल्व टॉवर्स ऑफ हैनोई recurrence using plug and chug. एक्चुअली ये लेना जरूरी नहीं है, लेकिन प्लग एंड चग मेथड को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेना जरूरी है. तो आप बोलो मुझे, टॉवर्स ऑफ हैनोई का रिकरेंस क्या था, T1 क्या था और Tn क्या था. देखो अपनी नोटबुक में. T1 1 था. 2 into Tn minus 1. T1 1 था और Tn 2 Tn minus 1 +1. plus 1. ओके, तो अब प्लग एंड चग में हम लोग स्टेप 1 लिखते हैं. तो क्या है स्टेप 1, प्लग एंड चग until a pattern appears. ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं. तो इसके लिए हम Tn लिखते हैं जो है 2 to n-1 plus 1, और यहाँ पर फिर हमें प्लग करना है. इसको नाम देते हैं प्लग. क्या लिखूं अब मैं, Tn-1 को एक्सपांड करना है. ये है Tn, तो Tn-1 क्या आएगा, ये Tn है 2 Tn-1 plus 1, तो Tn-1 आ जाएगा 2 यहाँ पर, और Tn माइनस n को रिप्लेस किया था n-1 से, तो n-1 को रिप्लेस करेंगे n-2 से 2. और आ जाएगा 1 यहाँ पर. ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 Tn-2 plus 1. अब इसको चेक करते हैं. ये आ जाएगा आपका 4 Tn-2 plus 2 plus 1. अब मैं इसको फिर से 3 नहीं लिखूंगी, 2 plus 1 3 नहीं लिखूंगी. देखते हैं आगे कुछ पैटर्न हो सकता है, और अगर आगे का नंबर कुछ ऐसे पैटर्न जैसे नहीं दिखता है तो फिर बाद में इसको हम 3 कर लेंगे. तो अभी तो यहाँ पर हम बोल नहीं सकते कि क्या पैटर्न आएगा, तो फिर से एक बार प्लग कर देते हैं. यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और फिर 2 plus 1. अब ये Tn-2 के T2 को एक्सपांड करना है, तो ये आ जाएगा आपका 2 n माइनस क्या आएगा यहाँ पर, n-3. 3. करेक्ट 3 करेक्ट plus 1. 2 Tn-3 plus 1. तो ये हो जाएगा आपका 8 Tn-3 Tn plus 4 plus 2 plus 1. करेक्ट है. अब फिर से एक बार प्लग कर दो, शायद कोई पैटर्न निकल जाए. तो ये हो गया आपका 8 into 2 Tn माइनस क्या लिखूं यहाँ पर, n-4 4 plus plus 1 n 1 plus plus 4 plus 2 4 plus 2 plus 1. चेक कर दो इसको. 16 Tn-4 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. कुछ तो भी पैटर्न मुझे लग रहा है यहाँ पर.
बोल सकते हो क्या पैटर्न है? मुझे तो थोड़ा समझ में आ रहा है। ये जो है 4, ये जो 4 है, ये जो 3 है, ये जो 2 है, ये और ये जो 4, 8 और 16 इनमें है कुछ तो संबंध। ये 2⁴ है, ये 2�3 है, ये 2⁵ है। तो ये जो नंबर है यहाँ पर, ये 2 की पावर है। 2⁴ 16, 2�38, ऐसे, राइट? Yes. और ये जो पावर है यहाँ पर 2⁴ है तो 2�3 है, ये 2⁵ है, ये 2⁵ है और ये 2⁵ है। मतलब जो पावर यहाँ पर ली है उसे एक एक कम किया है यहाँ पर। ऐसा पैटर्न हो सकता है इसका? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2⁴ t n minus 2⁻n-4 plus 2⁵ plus 2⁵ plus 2⁵ plus 2⁵. अगर मैंने इसको k लिखा, आप ये लिख लो अपनी नोटबुक में 2⁴, आगे की स्लाइड पर हमें वो 4 को k करना है। ये है 2⁴ t of n-4 plus 2⁵ plus 2⁵ plus 2⁵ plus 2⁵. तो ये हो जाएगा आपका, let me add one slide here. तो tn equals to, अगर मैंने वो 4 को k बोला तो ये आ जाएगा 2⁻k t of n-4 मतलब n-k plus 2⁻k-1 plus 2⁻k-2 plus 2⁵ plus 2⁵ plus 2⁵. क्या ये पैटर्न हो सकता है? तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ये टर्म तो वैसे की वैसी रहेगी 2⁻k t of n-k प्लस ये जो है 2⁻k-1 k-2 अप टू 0। इसके लिए हम पिछले ही एग्जाम्पल में देखा है कि ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है 2⁻k-1 की। ये जो सीक्वेंस है ये पार्शियल सम बोलते हैं इसको। तो ये जो पूरी सीक्वेंस है ये कितनी टर्म्स है? 2⁻k टर्म्स है, -1 किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पैटर्न। अब नेक्स्ट क्या आता है? हम ये पैटर्न वेरीफाई करते हैं। स्टेप 2 में वेरीफाई द पैटर्न। ओके, आपको ये पैटर्न वेरीफाई करना है एज एन होमवर्क, और कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। आपको आ जाएगा ये स्टेप 2 और स्टेप 3 करके देखते हैं, ठीक है? आप स्टेप 2 और स्टेप 3 परफॉर्म करो एज एन होमवर्क और कल मुझे बताओ, हम फिर से सॉल्व कर लेंगे ये। I want to discuss one thing with you. Let me stop recording first.